Colleagues in public health, I'm Robert F. Kennedy Jr., the U.S. Health and Human Services Secretary. As you know, President Trump has made the decision to withdraw the United States from the World Health Organization. I'd like to take this opportunity to offer some background to that decision and, more importantly, to chart a future path toward global cooperation on health and health security. Like many legacy institutions, the WHO has become mired in bureaucratic bloat, entrenched paradigms, conflicts of interest, and international power politics. While the United States has provided the lion's share of the organization's funding historically, other countries, such as China, have exerted undue influence over its operations in ways that serve their own interests and not particularly the interests of the global public. This all became obvious during the COVID pandemic when the WHO, under pressure from China, suppressed reports at critical junctures of human-to-human transmission and then worked with China to promote the fiction that COVID originated from bats or pangolins rather than from a Chinese government-sponsored research at a biolab in Wuhan. Not only has the WHO capitulated to political pressure from China, it's also failed to maintain an organization characterized by transparency and fair governance by and for its member states. The WHO often acts like it has forgotten that its members must remain accountable to their own citizens and not to... No, इसीलिए हम ये बताया कि आप जानकार हो जाइए और इससे बाहर आइए, वरना हमारी जिंदगी बदतर हो जाएगी, क्योंकि ये स्वास्थ्य और जीने का हक हमारा है। कोई पार्टी, कोई मोदी हो या कोई राहुल गांधी हो, कोई भी हो, वो केवल सेवक है। They are just public servants. And how come a public servant boss over constitution? That means we people, about our health and our right to life. So we are providing you information, you decide. And I'll just play the senator once and then I'll take last. It's become clear that people in this country and globally have been steamrolled. It is also clear that it has been coordinated globally. It is also clear that it has been integrated, not just over 6 months, not just over 2.5 years, but it has been planned over decades. The changes to legislation in this country were done so that they could control doctors and people. But the people are waking, and it's thanks to people like Dr. Altman and all the presenters here today, thanks to people like Senator Babette and Craig Kelly. We know and we knew that this is all bullshit and that we've been had. But we are going to hound you down, the people that are guilty. We are going to hound you down and hold you accountable, and we will expose your global agenda so that the people of Australia can be free in the future. Because I love my kids, and I'm looking forward to my grandkids. And we are going to save this country. It's become... Sarji, I think I need not show your comment, Sarji. अभी जाग रहे हैं, लोग जाग रहे हैं, और रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर का जो भाषण दिया था, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली को दिया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये मतलब डब्ल्यूएचओ के आंख में आंख, जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली चल रहा था मई 27 तक, आंख में आंख डाल के बात किया। इतना मतलब एविडेंस है उनके पास कि कोई ने उनको रिपोर्ट करने का हिम्मत नहीं हुआ। और जितने भी कंट्रीज जो बैठे थे रैप, उनको इतना बेशरम है कि उनको वो साइन करके आ गए टीटी। और अभी ऑस्ट्रेलिया, तो ये फर्स्ट है। सेकंड है कि बार बार अभी जब डब्ल्यूएचओ से हट गया यूएसए, चाइना और डोमिनेंट रोल उसमें करेगा, और चाइना ने अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ा दिया। $500 मिलियन दिया उन्होंने चाइना को। तो बिगर इतना पैसा देके जब चाइना पूरा डब्ल्यूएचओ को कंट्रोल कर रहा था, तो अभी उतना एक्स्ट्रा वैक्यूम जो यूएसए ने छोड़ा है वो चाइना भर रहा है, तो वो तो पूरा मुट्ठी में रहेगा। और हम उसी बिस्तर में जा रहे हैं जहाँ चाइना बैठा हुआ है, उसी टेंट में जा रहे हैं जिसको कहते हैं। तो एक प्रकार से अजगर है जिस पानी में, उस पानी में हम पैर डाल रहे हैं। तो क्रोकोडाइल से बच के रहना चाहिए, चाइनीज ड्रैगन से बच के रहना चाहिए। ये हेल्थ के मैटर नहीं है, ये जियोपॉलिटिक्स का मैटर है। तो ये हमको और हमारे पार्लियामेंट में प्रतिनिधि होने चाहिए जो ऐसे सीनेटर्स जैसे बात किए, या रॉबर्ट कैनेडी जैसे। डेमोक्रेसी है हमारा, ऑस्ट्रेलिया डेमोक्रेसी है, अमेरिका हमारा डेमोक्रेसी इतना शांत क्यों है? तो ये बड़ा
मतलब अभी मैच्योर नहीं हुआ डेमोक्रेसी, इसका मतलब। Wonderful, wonderful. And what is that? What should be the take for India from all these things? Now people are getting scared. लोग डर रहे हैं. तो इस शो से इंडिया को क्या बता देंगे हम यूएस सेनेटर के? और इतने बेशर्मी कैसे हो सकते ट्रीटी, जब कैनेडी रॉबर्ट कैनेडी ने क्लियरली बताया ये वुहान, चाइना और डब्ल्यूएचओ मिलके ये बड़ी साजिश बदमाशी की है कोविड-19 की, आधार के साथ उन्होंने पूरा सब कुछ कहा है। ये कहने के बाद भी हमारे मोदी और अमित शाह भारत क्यों साइन कर रहा है, और चाइना के साथ इनका संबंध क्या है? बाद में भी निकल सकता है, जब वो देखेंगे, हवा का रुख देखेंगे। ये पॉलिटिशियन का कुछ नहीं होते हैं ऐसे, वो हवा का रुख देखते हैं। जब देखेंगे कि वोट दूसरी तरफ चला जाएगा। अभी देखिए, ये वोट से, इसी से, पीपल पावर से ट्रम्प आया है, क्योंकि ट्रम्प ऐसे में पॉलिटिक्स उसका बड़ा अनप्रिडिक्टेबल है। पर बिकॉज ऑफ द पीपल अंडरस्टूड दैट ये ग्लोबल ये चल रहा है, एजेंडा चल रहा है, हमारा आज़ादी जाएगा, तो उन्होंने लाया है। तो हमारे देश में भी अभी देखिए, दिल्ली का हेल्थ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है। तो इसका मतलब धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं, और दूसरे कंट्री में भी जागरूक हो रहे हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया में अभी सीनेटर ने दिया है। और हमारे यहाँ देखिएगा, अभी पैनिक नहीं है। एक चीज़ मैं अच्छा देख रहा हूँ, पब्लिक पैनिक नहीं है। और जहाँ जहाँ ऐसे वीडियोस डाल रहे हैं पैनिक का, उसके नीचे वाले कमेंट्स में देख रहा था, नो 90% लोग कमेंट्स दे रहे हैं कि ये समझ रहे हैं। जैसे दिल्ली का चीफ मिनिस्टर ने जो कमेंट दिया है, हुआ, वैसे ही कमेंट्स आ रहे हैं अपने अपने भाषा में। और रेड्डी साहब ने तो बहुत तगड़ा भाषा इस्तेमाल किया, वैसे भाषा में भी कमेंट्स आ रहे हैं। तो ये ऐसे ही होगा, जैसे लोगों को पता चलेगा, नेता देखेगा, पॉलिटिशियन देखेगा कि हमारा वोट बैंक है। नोट और वोट दो चीज है उसको। अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड से काम चल रहा था, अब इलेक्ट्रल बॉन्ड धरा रह जाएगा अगर वोट चले गए तो इट इज पब्लिक पार्टिसिपेशन विच इज